आदरणीय मान्यवर आणि उपस्थित रिसर्च स्कॉलर, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज स्नातकोत्तर इतिहास विभाग राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्वविद्यालय आणि इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चर स्टडीज न्यू दिल्ली आणि IQAC स्पॉन्सर द्वारा संयुक्त रूप द्वारा आयोजित या एक दिवसीय इंटरनॅशनल डिसिप्लिनरी कॉन्फरन्समध्ये मी डॉक्टर लक्ष्मण गोरे आपण सर्वांचा स्वागत करतो. इथे एक सांगू इच्छितो, मान्यवर, आपके आगमन से न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है बल्कि हम सभी युवाओं और जो भी यहाँ पे प्रतिभागियों में एक नया उत्साह भी भर दिया है. आपका यह होना हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है. मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि सभी मान्यवर अपना स्थान ग्रहण करें. अभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं जयंत कुमार उकरे सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के अंतिम सत्र के अध्यक्ष आदरणीय SP गाड़गे सर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चर स्टडीज़ नई दिल्ली, इनका शाल, श्रीफल और गोंडी पेंटिंग और पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें. आज के इस अंतिम सत्र के जो मुख्य वक्ता है, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे अभी कुछ ही देर में, मैं उनका भी स्वागत शब्द सुमन से करता हूँ. इसके बाद अशोक नेताम सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आज के जो मुख्य अतिथि है, आदरणीय डॉक्टर मेधा कानेटकर मैडम, अधिष्ठाता वाणिज्य और प्रबंधन संकाय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर, इनका स्वागत अशोक नेताम सर करे, ऐसे में उनको विनंती कर. ठीक है. राकेश कोरेकर सर, शाल, श्रीफल, गोंडी पेंटिंग और पुष्पगुच्छ दे के उनका स्वागत करें. मैं विट्ठल पारके सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आदरणीय अधिष्ठाता और विभाग प्रमुख डॉक्टर श्यामराव कोरेटे सर का स्वागत पुष्पगुच्छ दे के करें. समारोह की विधिवत शुरुआत हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्यामराव कोरेटे सर को कि वो हमें उद्बोधन करके मार्गदर्शन करें. So finally, this is a valedictory session. We are almost at the final stage of this today's conference. But before that, we have one more deliberation from USA. Dr. Lakshman Satya is going to shortly join us at 4:30. I would like to
give the briefings about the today's program to the chairperson, Dr. Gadge sir and Medha Kanetkar madam. Early in the morning that we had inaugural session and of Dr. Manali Shirsagar madam, Honorable Vice Chancellor, had chaired the session. We had the representative from the ICCS New Delhi, India, Dr. Shri Ravi Shankar ji, and apart from them, that we also had the guests like Praveen Yogi ji, you all heard them, and an international resource person also was here, and still she is present in this hall, Dr. Svetlana Sidorova from Russia. And finally, after the lunch that we had the two sessions combined together as a paper reading, the most important thing is that most of the time it is the complaint from the research scholars that they won't get sufficient time to speak in front of the audiences. That is true. But the thing is that some of the representative kind of the presentations also are actually invited here, and therefore I am really would like to say that we could not make it possible to accommodate all the presentations because of the paucity of the time. And therefore, my dear friends, definitely in the future that we will try to make it more large span of the time for all of you. And finally, when I would like to say that these kind of the conferences are very much important because this is a learning process, because we are, since early in the morning that we are focusing upon our lenses upon the shifting the lens, the historical and cultural studies, and therefore that this is a learning process where that we all learn from each other. The people who are sitting on the dais, they are also learning from you, and you people are also learning from the resource person and the guests who are coming for this kind of the deliberations. And therefore, the thing is that this is how that we are missing each other today, because we are living in the social media most of the time. We have more than 5,000 friends in the social medias, but we won't have a face-to-face interaction, and for that purpose that these kind of the conferences, these kind of the workshops are badly needed, and therefore that we need to come together. It is said most of the time that when 10 people will come, the 11th idea will generate, and this is how that we are originating the new thoughts, new ideas with this kind of the discussions. I think that I should have to stop here because the resource persons are online, and we would like to hear him first. Then Dr. Medha Kanetkar will present her presentation, and finally that Dr. Gadge sir will give his final remarks. But at the outset, I would like to appreciate that large number of the people are sitting here till now, and this is how that your participation is actually matters to me. And I equally thankful to the guest and the chairperson sitting on the dais today. Thank you so much for joining us. धन्यवाद सर इस प्रेरणादायी और ओजस्वी शब्दों के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज के जो मुख्य वक्ता है वो जो यहाँ अभी ऑनलाइन जुड़ेंगे, जिनका एक अलग ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व है, जिनके वैश्विक पटल पर उनको इतिहास के नेता कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर लक्ष्मण सत्या जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए में प्रोफेसर पे कार्यरत है। उनका अनुभव के बाद अगर अनुभव की हम बात करते हैं तो शोध में बड़े पैमाने पर उन्होंने अध्ययन किया है। साधारणतः 30 सालों तक उनका एक व्यापक शोध के क्षेत्र में अनुभव रहा है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 77वीं जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक थी, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए उनको प्रोफेसर एम अतर अली के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा भी उनके 4 ऐसे किताबें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक
ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का बहुत ही बड़े पैमाने पर मान रखा जाता है। ऐसे ही बड़े लेवल पर उनकी 4 किताबें प्रसिद्ध हुई है, जिनमें से मैं 2 नाम आपको बता दूं। कॉटन एंड फेमाइन इन बेरार, जो बेरार से संबंधित है। दूसरा इकोलॉजी एंड कोलोनिज्म एंड कैटल, जो इसी क्षेत्र से उपनिवेशवाद। हाँ सर, आपका ही इंट्रोडक्शन चालू है। वेलकम टू सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ शब्द सुमनों से। ठीक है। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर भी अनेक पाठ्यक्रमों के लिए तैयारी की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा, जिसके बाद एशिया का पर्यावरण इतिहास, ऐसे कोई विद्यापीठ स्तर पर किताबें उन्होंने यानी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वैसे ही मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने बहुत ही खास करके जापान और भारत में बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिए हैं। तो जिस तरह से सर का अध्ययन क्षेत्र में बड़ा ही योगदान जैसे हमने देखा है, वैसे तो बहुत बड़ा उनके क्षेत्र में अगर पढ़ा जाए तो हमारा ये क्षेत्र भी जो सत्र है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसको कंक्लूड किया। लेकिन उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ना कोई मंजिल दूर है, ना कोई मंजिल दूर है, ना कोई राह मुश्किल है। ना कोई मंजिल दूर है, ना कोई राह मुश्किल है, जो हिम्मत से चला उसकी हर तरह राह आसान है। इसी शब्द से मैं डॉक्टर सत्या सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आज हमारे अतिथियों को संबोधन करें और मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सत्या सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन, और बड़ी खुशी हुई आपने हमको इनवाइट किया, और आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स समय निकालने के लिए। तो मेरा टॉपिक है रिवर्सिंग द गेज इन 3 स्टेजेस, द डिक्लाइन एंड डिमाइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देखिए 3 स्टेजेस जो है ये हमने आइडेंटिफाई किया है। एक तो 1757 से 1857 स्टेज 1, जिसमें उन्होंने डिवाइड एंड कॉन्कर का पॉलिसी फॉलो किया था, और फिर 1758 से 1946 में उन्होंने जो है लगाया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और 1946 से 1947 और 48 में डिवाइड एंड क्विट। और ये ऐसे स्टेट जैकेट नहीं है, ये डेट्स एक्चुअली ओवरलैप होते हैं। जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑलरेडी 1830 से स्टार्ट हो गया था, और डिवाइड एंड क्विट जो है इनका 1940 से हो गया था शुरू। सो कन्वीनियंस के लिए हमने ये 3 पॉकेट्स ऑफ टाइम आइडेंटिफाई किया है। ना इसके लिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम देंगे। ये जो है ये ब्रिटिश कहाँ से आए इंडिया और कैसे आए, इतना बड़ा देश इंडिया का इन्होंने कैसे मतलब इधर फुटहोल्ड रखा। इसके लिए जो है क्वीन एलिजाबेथ I के ज़माने जो कॉन्टेम्प्रेरी अकबर की कॉन्टेम्प्रेरी थी, उन्होंने कमीशन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सबसे दुनिया की सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनी इसको कहा जा सकता है। और इन्होंने शेयर्स फ्लोट किए थे लंदन स्टॉक मार्केट में। उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग ने इन्वेस्ट किया था, जैसे रॉयल्टीज हुआ, और एरिस्टोक्रेसी, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बैंकर्स, फाइनेंसियर्स, और wealthy citizens of London invested because the company actually guaranteed very high dividends, and the company was maintaining a fleet of ships in Liverpool and London ports. From there they operated. Basically they were pirates. They were looting shipping in the Atlantic Ocean. They were conducting slave trade. Spanish galleons, Spanish Empire was in Central and South America, and which was rich in gold and silver. So Spanish galleons were taking this gold and silver from looting from South America and Central America, and
transiting through the Atlantic, so these English pirates, East India Company pirates would, loot those ships. So they were all gunboats. It was like a mafia type of activity. And then they, came to India because India in the 18th century was very, very rich. Mughal Empire, 17th century Mughal Empire was at its height. 25% of the world GDP was manufacturing was happening in India. तो ये आए इंडिया में बेसिकली पैसा कमाने के लिए, पैसा लूटने के लिए, क्योंकि इनका मेंटालिटी बेसिकली वाज लूटर्स टाइप ऑफ पीपल. They were not somebody with whom you can sit down and negotiate things. So they basically came to Indian Ocean and started the same activity. Africans को लेके जाके मेडागास्कर में लगा दिया, साउथ ईस्ट एशिया में जाके उन लोगों को लाके अफ्रीका में लगा दिया, बेच दिया. अफ्रीका में गोल्ड और आइवरी को लूट के ले जाते थे. और इंडिया में ये अट्रैक्ट हुए टेक्सटाइल्स और जेम्स और फार्मास्यूटिकल्स, जो कि बहुत बड़ा था इंडिया में वो टाइम पर. पेपर वगैरह, सब स्पाइसेस, सिनेमन वगैरह, बिग एक्सपोर्ट आइटम. टेक्सटाइल में था कॉटन टेक्सटाइल्स और सिल्क टेक्सटाइल्स. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडिया वाज एक्चुअली वेरी वेरी रिच बट politically unstable. Mughal Empire has disintegrated into regional successor states, and these regional successor states were fighting amongst themselves for more territories, for more revenues, for more peasants and agricultural lands to conquer. इसमें इन्होंने जो है they established a bridgehead in 3 places: Bombay, Calcutta, and Madras. And then they started raising these mercenaries. These were demobilized soldiers and the youth of the Mughal Empire, who were trained and who were armed by the British East India Company. They were maintaining their own private armies here, and these armies were for hire. जो पैसा देगा हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं. और इनके पास फायर आर्म्स थे, टैंक्स वगैरह थे, लेटेस्ट वेपन्स. तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में 18th सेंचुरी में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन शुरू हो गए. पहले सिराजुद्दौला के कमांडर्स को ब्राइब करके सिराजुद्दौला को हटाया, फिर उसके कमांडर उसको ब्राइब, मीर जाफर को ब्राइब करके मीर कासिम को लगाया, फिर मीर कासिम को निकाल लिए, फिर पूरा बंगाल को कैप्चर कर लिया, मुगल एम्पायर को हराया, अवध को हराया, और जबरदस्ती मुगल एम्पायर का हाथ जो है तोड़ मरोड़ के उसको जबरदस्ती से पूरा रेवेन्यू जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिया. सबसे बड़ा प्रोविंस इंडिया का. और इससे क्या हुआ, उनका इनॉर्मस वेल्थ आ गया, लूटा. इट इज 1757 से 1770 से जो बंगाल में लूट मचाया इन लोगों ने, 1770 में अकाल आया वहां पर, बहुत बड़ा फाइन, 10 मिलियन लोग मरे. Almost 1/3 of the population was wiped out of Bengal. Its silk industry, its jute industry, its textile industry, पूरा wiped out. But their shareholders in London were getting 100% dividends, 50% dividends on investment, 200% dividends on investments. So it was all about capital money, right? Mercantilism, and state was supporting it. The British इंटीरियर स्टेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो बंगाल को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने जो है सेम लूट मचाया मद्रास और बॉम्बे एरियाज में. और वहाँ पर साउथ में मैसूर, टीपू सुल्तान जो है बहुत बड़ा मैसूर का राज था, वो भी वेरी रिच. मैसूर में जो है कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे वहाँ पर, गार्डन कल्टीवेशन, कैश क्रॉप कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन, दुनिया भर के एक्सपोर्ट क्रॉप्स वहाँ पर होते थे. तो टीपू सुल्तान को हराया, पूरा मैसूर को कॉन्कर कर लिया. कॉन्कर करके वहाँ पर एक अपने पपेट राजा को बिठा दिया, जयचामराज वड़ियार, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली से पहले के राजा को वहाँ बिठा दिया. और वो राजा जो है, हाँ भाई ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, आप कंट्रोल करो मेरे को कोई बात नहीं है, मेरे को गद्दी में बिठा दो. और पूरा फॉरेन पॉलिसी और पूरा
उनका डिफेंस पूरा ब्रिटिश के हाथ में। तो ये मर्सनरी फोर्स जो है इन्होंने रेगुलर फोर्स बना के इधर मैसूर और बंगाल में बिठा दिया और लोकल राजाओं को बोला कि तुम अपने रेवेन्यू से इसको चलाओ, और जब हमको चाहिए तो हम उनको लेके दूसरे एरिया को काउंटर करेंगे। ऐसे करके इंडियंस रेवेन्यूज को इंडियन सिपाहीज के साथ इंडिया को काउंटर किया इन लोगों ने। इंडिया ये बहुत 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 बड़ा देश है। जो बंगाल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, वो टाइम पर तो जाने के लिए 1-2 महीना लग जाता था, ना टेलीफोन था ना कुछ था, रोड्स वगैरह थे थोड़ा। तो इस तरह से इन्होंने जो है फिर इस तरह से मराठों को भी ऐसे किया। भीमा कोरेगाम का केस है, वहां पर महार मुस्लिम्स, ज्यूस, क्रिश्चियंस वगैरह को जुगाड़ करके पेशवा के खिलाफ लड़ा दिया। आपस में जो लड़ मर रहे हैं और मराठों को हरा के निकाल दिया और फिर पूरा काउंटर कर लिया पूरा वेस्टर्न इंडिया को, गुजरात को। इसी तरह से उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस लगाया। किसने? वेलेस्ली ने। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये है कि ये पपेट प्रिंसली स्टेट से निजाम वगैरह है, कर्नाटक है, केरला में 1-2 है प्रिंसली स्टेट्स, पंजाब, इधर गुजरात में 1-2 प्रिंसली स्टेट्स है। सबको जुगाड़ करके बोले आप लोग साइन करिए जबरदस्ती, हमारा आर्मी आपके किंगडम में रहेगा और आपका फॉरेन पॉलिसी हम कंट्रोल करेंगे और आपके रेवेन्यू से हमारे आर्मी को मेंटेन करो, ताकि ब्रिटिश को कोई खर्चा ना हो, और उल्टा ऊपर से कंपेंसेशन भी देना है ब्रिटिश को आर्मी मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने जो है डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश इंटीरियर एरियाज और प्रिंसली स्टेट्स, हु वर बेसिकली पपेट्स। और आखिर में फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के तो डलहौजी ने पूरा पंजाब को खा लिया, अवध को खा लिया, और फिर 1 डजन प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे सतारा हुआ, झांसी हुआ, नागपुर हुआ। तो 1857 तक पूरा इंडिया को जो है इन्होंने काउंटर कर लिया, डिवाइड एंड काउंटर पॉलिसी करके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मुगल एम्पायर्स वीकनेस। मुगल एम्परर और पेशवा दोनों को पेंशन कर दिया, बोले जाओ तुम लोग, और पेशवा को पूना में लगा दिया और मुगल एम्पायर को दिल्ली में कैद करके रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज फ्रॉम 1757 to 1857 the stage of divide and conquer policy फॉलो की। 1857 में जो है क्या हुआ, सब हिंदू मुस्लिम सब जमा हो गए, जमा होके बोले भाई ब्रिटिश को निकालो यहाँ से। मुगल एम्पायर को लगाया ताज में, बोले मुगल एम्पायर को रिवाइव करो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्चुअली डिवाइस किया, काफी प्रोग्रेसिव थे वो लोग, हालांकि उनमें ज्यादा एजुकेशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था इंडिया में। मुगल एम्परर का प्रोक्लेमेशन है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया फॉर 1.5 years नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया जो है वेंट आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। दैट सेंड अ शॉक वेव्स टू देम। जो अमेरिका में हुआ था, इन लोगों को निकाला था वहां से अमेरिकन रेवोल्यूशनरी से, वही हालत यहाँ पर होने जा रहा था। तो फिर बोले कि हम लोग को अब ये पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, ये पॉलिसी डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें फूट पैदा करेंगे। ये हिंदू और मुस्लिम जो है बड़े बड़े कम्युनिटीज, इनके बीच में फूट लगाना है। तो कैसे लगाना है, जो मुगल एम्परर के जो उन्होंने जो क्या किया कि 1857 रिबेलियन का ब्लेम जो है मुस्लिम्स के ऊपर किया। ये जो मुस्लिम राजा को लाने चाह रहे थे, तो ये कॉन्स्पिरेसी है। एक इंडियन मुसलमान करके W.J. अख्तर का एक किताब निकली थी, उसमें यही लिखा हुआ है, वो मिड 19th सेंचुरी में आई थी। वो उसमें लिखा हुआ है कि देखो ये एक कॉन्स्पिरेसी है मुस्लिम्स का कि ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो करने का, इसलिए हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को जो है मुस्लिम्स के ऊपर आंख लगाना है, उनको सर्वेलेंस करना है। ये उनका पॉलिसी था। तो उसका पॉलिसी क्या है, हिंदुओं को प्रमोट करना है। तो सोमनाथ का मुद्दा उठाया, सोमनाथ टेम्पल को मुस्लिम से वो किया,
और इससे जो है हिंदुओं का जो हिंदू ऑपरेशन हुआ कहाँ 800 साल ये दिल्ली सुल्तान और मुगलों ने मुसलमानों ने हिंदुओं को जो है ऑपरेस किया, इसलिए हिंदू अभी अभी हम लोग आके आपकी रक्षा कर रहे हैं करके इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज हिंदुओं में प्रमोट किया। बोले भाई तुम पढ़ो। बेसिकली आइडिया क्या था कि क्लर्क बनाओ, पियोन पियोन हमको क्लर्क चाहिए, पियोन चाहिए, लोकल लोअर लेवल जितने भी ब्यूरोक्रेसी में है वहाँ इंग्लैंड से कोई नहीं आया यहाँ पर पियोन बनने के लिए, तो ये इंडिया देश में आए लगा उन लोगों को। तो 1830 से 1857 फर्स्ट जनरेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस तैयार हो गए थे और उनका क्या था, ये ब्रिटिश के लॉयलिस्ट, और 1857 में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया ये वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, क्योंकि उनके लिए कोई जॉब है ही नहीं। इंग्लिश पढ़ा, एक ही जॉब है, ब्रिटिश के लिए काम करो, गुलामी करो। और इस बीच में क्या हुआ, मुस्लिम्स जो है अपने रिलीजन में रिट्रीट कर गए, बोले कि ब्रिटिश ने आके हमारा राज निकाल दिया, तो हम अभी इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन नहीं पढ़ेंगे, हम हमारे रिलीजन में चले जाएंगे, कुरान और मदरसा वगैरह में। तो मौलवी वगैरह जो है बहुत पावरफुल हो गए उनमें, तो कंजर्वेशन छा गया था। तो अभी हिंदू आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू जॉब ले रहे हैं, और सेकेंड जनरेशन हिंदू 80s 60s 70s में आए, उन्हें बोला भाई ये तो हम लोग तो गुलाम हैं, हमको चाहिए, हमको भी वही चाहिए जो ब्रिटिश और गोरों को चाहिए, हमको भी फ्रीडम चाहिए, हमको भी बोलने का वो चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। हाँ, और हमारे देश में हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ये गोरे आके कहाँ से कंट्रोल करें हम लोग। यहाँ देश में गरीबी है, देश में लोग भूख से मर रहे हैं, देश में इतना पैसा है कहाँ जा रहा है, करके ये लोग क्वेश्चन करना शुरू करें। ये सेकंड जनरेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, इस पूना सार्वजनिक सभा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बनाए, इंडियन एसोसिएशन, दुनिया भर के एसोसिएशन, हर एक प्रेसिडेंसी में ये वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस बड़े बड़े प्रेसिडेंसी टाउन्स में अपना अपना एसोसिएशन बना के बातचीत कर रहे हैं, आपस में बोल रहे भाई अरे रेलवे लगाया, लेकिन रेलवे का क्या फायदा, हमको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मिलिट्री के ऊपर इतना खर्चा क्यों हो रहा है? हमारे सिपाही जाके चाइना में ओपियम वॉर फाइट कर रहे हैं ब्रिटिश के लिए, हमारे सिपाही जाके अफगानिस्तान में लड़ के मर रहे हैं, बर्मा में उनको भेजा जा रहा है, ईडन में भेजा जा रहा है, दुनिया भर के, हमको यहाँ कुछ भी नहीं है। और सिपाही जब मर जाता है तो उसका बॉडी भी नहीं लाते यहाँ पर, डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कभी दुनिया भर के मुद्दा उठा रहे हैं और बोल रहे कि ये इतना बड़ा इंडियन सिविल सर्विस है लेकिन उसमें कोई इंडियन ही नहीं है। अरे हमको चांस दो भाई, हमारे देश में हम वो नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है राज करने के लिए। ऐसा मुद्दा उठाने से क्या हुआ, ये बोले अरे बाबा ये तो प्यून और क्लर्क थे, हमने जो उनको प्यून और क्लर्क बनाया था, नौकर बनाने के लिए, ये तो हमारे सर पे चढ़ के बात कर रहे हैं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा करके मुसलमानों को इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। सैयद अहमद खान करके एक बड़ा उनका फिलोसोफर था उनके कम्युनिटी से, उसको बोले भाई तू कुछ कर, तुम्हारा कम्युनिटी इतना बैकवर्ड है, तू कुछ कर। तो बोला ठीक है। एक्चुअली ना वो 1857 रिबेलियन में जो मुसलमान जो पार्टिसिपेट किए थे वो मिसगाइडेड हो गए थे, डिसोबीडिएंट थे, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग मॉडर्निस्ट मुस्लिम हैं, हम लोग ब्रिटिश के लॉयलिस्ट हैं, हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ करो। तो ब्रिटिश ने बोला ठीक है करो, पैसा दे दिया उसको। अलीगढ़ ओरिएंटल अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज करके खुला, अलीगढ़ में खुले। उसका एजेंडा क्या है कि वेस्टर्न एजुकेटेड मुस्लिम्स बॉयज should a class should be formed which will be loyally to the British loyalism। तो बोले हम लोग मुसलमान कौम जो है ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है, हमारे कौम का प्रोटेक्शन जो है हिंदूस नहीं कर सकते हैं। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गया तो सैयद अहमद खान 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है कि हमको फ्रीडम चाहिए, हमको
लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। राज को कंटिन्यू करना है। तो ये पोजीशन लिया सैयद अहमद खान और मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स ने, एज अपोज टू देवबंदी एंड फरंगी महर मुस्लिम्स हु वर एक्चुअली अपोज टू द ब्रिटिश एंड दे वर प्रो इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो कंजर्वेटिव्स आर अपोज टू द ब्रिटिश एंड द मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स आर प्रो ब्रिटिश। ये सिचुएशन हो गया और इधर जो है झगड़ा शुरू हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था 1890s में जो आए थे, ये तिलक और बिपिन चंद्र पाल और ये लोग बोलने लगे भाई ये क्या है, आप लोग भीख मांग रहे हैं ब्रिटिश से, मेमोरियल पास कर रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं, हर साल मिलते हैं आप लोग, पार्टी करके निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन पास कर दिया और ब्रिटिश से बोले भाई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करो, हमको भी कुछ दो। ये आप लोग भीख मांग रहे हैं हमारे देश में रह के, ये तो इंसल्टिंग है। हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, हमको डिमांड करना चाहिए कि हमको स्वराज चाहिए। और 1890s में क्या हुआ कि ये एक्सट्रीमिस्ट ने ये हिंदू सिंबल्स और हिंदू फेस्टिवल्स वगैरह जैसे गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, हिंदू मेला, इस किस्म के फेस्टिवल से हिंदुओं को वो करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए किया। तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुआ था, जैसे उर्दू जो है मुसलमानों का लैंग्वेज है और हिंदी हिंदुओं का लैंग्वेज, इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे वो लोग। और फिर वो क्या कहते हैं कॉ प्रोटेक्शन मूवमेंट, मुसलमान वो गाय खाता है, हम लोग गाय को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इससे क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो है मुस्लिम मॉडर्निस्ट मुस्लिम बोलने लगे भाई ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बिल्कुल ही बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। हालांकि moderates were politically conservative, pro British, loyalists, but economically they were very radical। R.C. Dutt, रानाडे और गोखले और कौन था वो दाराभाई नौरोजी, ये लोग हमारी इकोनॉमिस्ट थे, ये लोग थियोरेटिशियंस और बड़े रिसर्च करने वाले। उनका किताब अगर पढ़ेंगे तो एक्चुअली उन लोगों ने पूरा थीसिस डेवलप किया था कि the reason why India is poor and poverty stricken is because the British Empire is exploiting India। करके उन्होंने बहुत बड़ा थीसिस एस्टैब्लिश कर दिया था। तो इकोनॉमिकली ये बहुत रेडिकल थे, लेकिन पॉलिटिकली लॉयलिस्ट थे। तो वही तिलक वगैरह ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बोला भाई ये नहीं चलेगा, हमारे देश में हमको बोलने का हक नहीं है। वो लॉर्ड लिटन ने जो पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1857 के बाद इंडिया में न्यूज़पेपर्स आना शुरू हो गए, बड़े बड़े प्रेस आ गया था। पूरा सार्वजनिक सभा के अगर आप पेपर्स पढ़ेंगे तो उसमें है सब कुछ। फेमिनिस्ट के ऊपर लिख रहे हैं, कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर लिख रहा है, कोई ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर लिख रहा है, कोई रेलवे के ऊपर लिख रहा है, कोई रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, दुनिया भर के इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में दुनिया भर के आर्टिकल्स वगैरह छाप रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में जो है कॉलेज में लेक्चर दे रहे प्रोफेसर वगैरह को पकड़ के डाल रहे अंदर, एडिटर को पकड़ के डाल दिया अंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, उसमें बोले आपका जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ छप रहा है वो हमको पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तिलक जैसे लोग तो बहुत ही बड़ा चढ़ा के बात करने वाले लोग थे, वो उनको चुप करने वाला कौन है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, ये आप लोग प्रोटेस्ट करो, डिमॉन्स्ट्रेट करो, हम स्वराज चाहिए हमको, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरह से बोलने लगे। तो वो ब्रिटिश बोले अरे भाई ये तो पहले तो मॉडरेट्स ने रेडिकल क्रिटिक किया हमारा, लेकिन मॉडरेट्स हमारे लॉयलिस्ट है, तो हम लोग जो मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ लगाएंगे।
तो मॉडरेट्स को सपोर्ट किया एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ, और एक्सट्रीमिस्ट साहब को पकड़ के अंदर डाला। मॉडरेट्स कोई भी जेल में नहीं गया। तिलक को 8 साल के काला पानी भेज दिया। प्रेम चंद्र पाल भी अंदर गया। लाला लाजपत राय को तो मार के लाठी मार के खत्म ही कर दिया। तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उन्होंने फूट क्रिएट कर दिया। अब मुस्लिम्स क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ अलीगढ़, जो अलीगढ़ से फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट होकर निकले, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका नाम, अभी ANU बन गया है वो। फर्स्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स क्या बोले कि हम ब्रिटिश के लॉयलिस्ट हैं, हम ब्रिटिश एम्पायर को कंटिन्यू होना चाहते हैं क्योंकि हमको हिंदुओं से डर लग रहा है। ये गणपति फेस्टिवल देखा, ये जो है हिंदू मेला चल रहा है, हम उसमें जा नहीं सकते हैं, तो हमको तो प्रोटेक्शन चाहिए। उनके पास कांग्रेस है, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ कि जितने भी जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड ऑल्सो लैंडलॉर्ड क्लास, लैंडेड एलिट्स, और मुगल एम्परर के जमाने के तालुकदार और जमींदार हुआ करते थे ना, वो सब एलिट्स बंगाल और पंजाब से मिलके मुस्लिम लीग फॉर्म करे। अर्ली 1904 1905 की बात है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, बंगाल प्रोविंस जो है बहुत ही पावरफुल हो गया है नेशनलिस्ट मूवमेंट में। वहां से एक्चुअली इवन रेवोल्यूशनरीज निकले, वहां से इधर से भी निकले, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से भी निकले। जो रेवोल्यूशनरी जो बोले मारो इनको, काटो, असैसिनेट करो इन्होंने, ये रेवोल्यूशनरी, वो तिलक को, एक्सट्रीमिस्ट को उस मूवमेंट से जोड़ दिया। और इधर जो है बंगाल में वो ही मूवमेंट रेवोल्यूशनरीज को जोड़ दिया इसके साथ, एक्सट्रीमिज्म के साथ। तो बोले भाई इसको सप्रेस करना है, ये अगर बढ़ेगा तो ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा है। तो एक काम करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने बोला कि काम करते हैं, बंगाल बहुत बड़ा हो गया है, ईस्ट बंगाल में जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पर पूरे पेजेंट्स हैं, लेकिन लैंड, बंगाल का लैंड पूरे लैंडलॉर्ड्स पूरे ये है हिंदू। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को सेपरेट कर देंगे। बोलेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, बहुत बड़ा प्रोविंस है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 प्रोविंस कर देंगे। लेकिन उसका एजेंडा ये था कर्जन का कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लगा। तो मुस्लिम लीग बोले ठीक है, पार्टीशन हमारे लिए अच्छा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला नहीं, पार्टीशन हमारे लिए ठीक नहीं। बंगाल वो बहुत बड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा उसके ऊपर वो है, पोएम वगैरह लिखा उसने, क्या बोलते, विधिर बंद काटबे तुम ही, मतलब जो भगवान ने जो हम लोगों को जुड़ाया है वो आप काट रहे हैं करके बहुत बड़ा उन्होंने वो लिखा था, पोएम लिखा था उसके ऊपर। और टैगोर और बहुत मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक्चुअली मिल गए थे स्वदेशी मूवमेंट। बाद में जाके टैगोर डिसोल्यूशन हो गया था, निकल गया वहां से। तो उधर क्या है, स्लोगन्स क्या दे रहे हैं, वंदे मातरम, स्वराज, इस किस्म का स्लोगन दे रहे हैं, वंदे मातरम सॉन्ग, हेट टू द मदर। अगर मुसलमान जो ये मूवमेंट को देखेगा बोलेगा अरे भाई ये तो हिंदू है, ये पूरा हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लिए तो यहाँ कोई जगह नहीं, इससे दूर रहो। और उन्हें बोला कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। वो टाइम पे थोड़ा जो ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पुश कर रहे थे कि ब्रिटिश को कि भाई थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो उन्होंने वो ब्रिटिश बोले, ब्रिटिश भी उनका भी राज थोड़ा खतरे में है, अगर हयाती अगर होगी तो ब्रिटिश एम्पायर भी थोड़ा शेक होगा अंदर से। तो ठीक है, इनको थोड़ा बहुत दे देंगे, जैसे म्यूनसिपल कमिटीज हुआ या टाउन काउंसिल्स हुआ या इंपीरियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ या इंपीरियल लेजिस्लेचर हुआ, इसमें इनको रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, थोड़ा बहुत इनको प्रॉपर्टी राइट्स जिनके पास है उनको वोटिंग राइट्स दे देंगे, और थोड़ा उनको पैसिफाई कर देंगे करके उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा प्रपोज किया। उसमें क्या है कि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है। अगर हिंदू लीडर अगर मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो रिलीजियस क्वालिफिकेशन फॉर पार्टिसिपेट इन
electoral process, and there are two very limited franchise. Right? तो मुस्लिम बोले ठीक है, हमको सेपरेट इलेक्टेड ठीक है कि हमारा वॉइस वाइसरॉय तक पहुंचेगा, गवर्नर तक पहुंचेगा, हम सपोर्ट करते हैं सेपरेट इलेक्टेड। ना इस बीच में क्या हुआ कि अलीगढ़ से सेकंड जनरेशन निकले स्वदेशी मूवमेंट के बाद और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। ये सेकंड जनरेशन कौन है? ये बोले, अरे भाई ये ब्रिटिश तो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर रहे हैं, हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम करना है, इसके ऊपर हमको देश की लिबरेशन फ्रीडम के ऊपर काम करना है, होम रूल के ऊपर काम करना है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना था, एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का वो था यंग लीडर था, वो एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी मेंबर था। और तिलक जो अभी जेल से निकल के आया, वो तिलक बेचारा वो बलशाली आदमी था, उसको जेल में डाल के उसको 8 साल जेल में ठूस के उसका फिजिकली उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन मेंटली वो बहुत स्ट्रांग था। बिल्कुल बोला ठीक है, हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, आओ। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने अलायंस किया, लखनऊ पैक्ट बनाया। अब ब्रिटिश आदमी घबराए, और जो हिंदू मुस्लिम जो ये अलायंस हो रहा है, इनको तोड़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे इसका मामला? क्योंकि अलीगढ़ सेकंड जनरेशन जो आया, पुराना जनरेशन जो सैयद अहमद खान का जनरेशन, वो तो खत्म हो गया, स्वदेशी मूवमेंट के साथ गया हुआ। अभी नया जनरेशन आ गया, सब यंग मुस्लिम, और वो भी बहुत आइडियलिस्टिक मुस्लिम। हाँ, देश के लिए होना चाहिए, देश आज़ाद होना चाहिए, बड़े नेशनलिस्ट। और लोग बोले हाँ एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, देखो मुसलमान इतना गरीब है, हिंदू इतना गरीब है, तो हंगर है जो मुसलमान और हिंदुओं के फर्क नहीं करता है ना, हंगर तो हंगर ही है, पॉवर्टी तो पॉवर्टी है। और ये सब वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट थे, जिनका जो है पब्लिक से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। तो तिलक के ये जितने भी लाल बाल पाल ये जितने भी थे ना, महादेव गोविंद रानाडे, गोखले, ये सब दादाभाई नौरोजी, ये सब एलिट्स है, वेस्टर्न एजुकेटेड। एक्चुअली ये किसानों से ज्यादा इनका वो भी नहीं था, डरते थे किसानों से मिलना। तिलक ने भी जो मोबिलाइज किया था, पूरा बड़े बड़े सिटी में मोबिलाइज किया था मिडिल क्लास, ठीक है। तो अभी इंडिया का वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन जो ट्राइबल्स है, जो विलेजेस में है, पेजेंट्स है, ये सब जो है वेटिंग, इनको कोई टच नहीं। चलो अरे ब्रिटिश एम्पायर है, वो क्या करेगा, मेरा फेट है, क्या करूँगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा, जो नहीं है खाना तो भूख से मर जाऊंगा। बस ये इस किस्म का एटीट्यूड कंट्री साइड में था। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बोले हमको होम रूल चाहिए, स्वराज से होम रूल, दैट इज वी शुड गवर्न आवरसेल्व्स, वी आर मोर क्वालिफाइड देन द ब्रिटिश। और हम अगर गवर्न करेंगे तो हम we are going to take care of our own people better करके होम रूल मूवमेंट चलाया था तिलक ने और एनी बेसेंट ने और जिन्ना ने। तो इस बीच में क्या हुआ, गांधी जो है 25 साल साउथ अफ्रीका में लड़ाई करके गांधी पहुंचा इंडिया, और गोखले उसको प्रमोट किया। गोखले उसका मेंटर था एक्चुअली। गोखले ने बोला भाई तुम आओ यहाँ पर, जो साउथ अफ्रीका में जो तुमने काम किया ना, वो आके यहाँ पर करो, अपना मूवमेंट चलाओ, पब्लिक तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तो गांधी आके बोला भाई ये एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स, ये सब जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन जो टाई कोट पहन के उतरते हैं, हर साल में एक बार पार्टी वगैरह करके चले जाते हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जाके खुद ही डिस्कवर करूंगा इंडिया। एक साल तक पूरा थर्ड क्लास कंपार्टमेंट पूरा घूमा, पैदल चला, इधर उधर, गांव में रहना, गांव में खाना, गांव के लोगों से बात करना। और वो जो है गांव, एक्चुअली वो गांधी का थिंकिंग जो है वेस्टर्नर है, वो एक्चुअली वाज ही वेंट टू टॉप लॉ स्कूल इन लंदन जस्ट लाइक नेहरू एंड जिन्ना। So his thinking was very Western, very methodical, like a lawyer. He was a lawyer. बट उसका पोशाक क्या है, जैसे हिंदू बाबा जैसे, राइट।
He looked like a Baba, like a typical Babas जो घूमते रहते हैं इंडिया में. तो क्या है वो उसका सिंबलिज्म को देख के ना मुस्लिम्स बोले ठीक है हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं लेकिन ये देखने में कैसा है, देखने में तो ये हिंदू लग रहा है. गांधी बोला ठीक है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ही जाके सर्वे करूंगा. करके उसने देखा, गांधी ने देखा कि भाई इंडिया में तो बहुत पावर्टी है, इतना पावर्टी. चंपारण में जाके देखा तो उसने बोला कि गांव में जो है एक उसमें एक गरीब आदमी के घर में गया तो उसके पास सिर्फ एक ही ये मटका था, उसी में वो पानी बॉयल करेगा, उसी में खाएगा, उसी में से नहाएगा. इतनी गरीबी. तो उसने बोला भाई ये तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ही इसको लड़ सकते हैं, अकेला नहीं होगा ये. तो वो टाइम पे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ और ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया मिडिल ईस्ट में, टर्की में. और ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस जो आया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसने मुस्लिम होली प्लेसेस को ब्रिटिश के अंडर में वो प्रोटेक्टरेट बना दिया. मतलब ब्रिटिश को मक्का मदीना का इंचार्ज बनाया. ठीक है. तो अभी मुसलमान क्या बोले कि हमारे देश में ये गाय सुअर खाने वाले लोग हमारे होली मॉस्क और मस्जिद का इंचार्ज कैसे हो सकते हैं. करके उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में. इसके खिलाफ खिलाफत का मतलब खलीफा, जो जैसे इंडिया में शंकराचार्य होते हैं हिंदुओं का, वैसे खलीफा करके उनका हेड ऑफ द रिलीजन. ही इज लाइक ए पॉलिटिकल हेड एज अ रिलीजियस हेड, खलीफा. तो खलीफा को हमको बचाना है, खलीफेट को बचाना है. उसके चलते यहाँ पर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुआ. मुस्लिम कम्युनिटी ने स्टार्ट किया. अली ब्रदर्स करके दो थे, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को मोबिलाइज किया अपने रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ. तो गांधी ने बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये हम लोग जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. और गांधी वॉज ए राइजिंग स्टार एट द टाइम. ही वॉज यंग, डायनामिक, फियरलेस. He was very anti-British openly. He knew how to fight because he had, launched that fight for 25 years in South Africa against the apartheid regime, which was even worse than the British Empire. And when he came back, he was a rising star. And what he did was he took over the leadership of the entire Indian National Congress and basically marginalized Jinnah, who was supported by Tilak. By that time, Tilak was already dead. And Jinnah took a position very different from Gandhi. He said that, look, we should not use religion for political purposes. We should keep this separate. Gandhi took a different position. Gandhi was a very religious man, very religious person. His religion was not really, his position was that you can be a very cutter follower of your own religion while at the same time you can be open to other religions, right? Respectful, tolerant, and have an interest in other religions. So his religion was very, very eclectic. Gandhi was a very complicated person. What was going on in his mind and how he looked were very different. So खिलाफत मूवमेंट जो है फेल हो गया, क्योंकि वो क्या हुआ, ये ऑटोमन एम्पायर ही डिसॉल्व हो गया तो टर्की ने कैलिफेट को ही डिसॉल्व कर दिया. तो मुस्लिम्स डिड नॉट हैव एनी, मुस्लिम्स लॉस्ट इंटरेस्ट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. And after that, Muslim participation in the mainstream nationalist movement was, lukewarm. They were just observers of Gandhi. देखते हैं गांधी क्या करता है, मुसलमानों के लिए क्या करेगा, ठीक है. And Gandhi then, in the 1920s में क्या हुआ, फिर 1920s में RSS आया, 1920s में अपना
दलित मूवमेंट स्टार्ट हुआ अम्बेडकर का 1920s में, CPI कम्युनिस्ट पार्टी आया। तो 1920s was a very dynamic period in Indian Indian nationalist movement, Indian एटमॉस्फियर। तो ब्रिटिश क्या बोले, ठीक है एक्चुअली हम लोग ना ये इसका फायदा उठा सकते हैं। आरएसएस को ब्रिटिश ने प्रमोट किया, सीपीआई को सप्रेस किया और दलित को प्रमोट किया, राइट। सीपीआई को सप्रेस किया क्यों कि कम्युनिस्ट जो है रशिया में अभी मतलब ये रेवोल्यूशन हुआ था और रशियन रेवोल्यूशन बोले कि प्रॉपर्टी खत्म कर दो, स्टेट को ओवरथ्रो करो। तो सीपीआई वो आइडियोलॉजी से आई थी। तो ब्रिटिश बोले भाई सीपीआई बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग सीपीआई को जो है न्यूट्रलाइज करके दलितों को और आरएसएस को प्रमोट करेंगे। वो भी किसके खिलाफ? गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ। दैट वाज द स्टार्टिंग। 1920s में पूरा चला है। 1930s में क्या हुआ? जब 60 सत्याग्रह हुआ, गांधी pretty much gave up on Muslims। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जो है हम लोग का अंदर का झगड़ा है, हम लोग सॉल्व करेंगे खुद ही अपने आप से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पोजीशन था उसका। 60 सत्याग्रह जब खत्म हुआ तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, वहां पर जो है कास्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ था, वहां पर रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन हुआ था, वहां पर सिखों का रिप्रेजेंटेशन हुआ था, वहां पर अम्बेडकर भी गया था और जिना मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हुआ था। तो गांधी बोला, गांधी एक ही 3 राउंड टेबल से एक ही अटेंड किया था। उसने बोला भाई ये इंडिया नहीं है, इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडिया इज ए यूनाइटेड इंडिया कंपोज ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स, ऑल कास्ट, ऑल कम्युनिटीज, एंड दैट वाज really not acceptable to these communities. Ambedkar disagreed with them. Jinnah very seriously disagreed with them. But Gandhi really did not believe in this constitutional change. जो Jinnah और Ambedkar बोल रहे थे कि we should bring constitutional change. We should that British were actually दलितों का पोजीशन ये था कि British did more for the Dalits education and their social upliftment than the Brahmanical Congress, right? And British took advantage of it. They said, okay, yeah, let's play caste against caste. So this was the situation in 1930s. And 1930s में also then Muslims started saying that we need a separate state. Even the word Pakistan was actually already formed in 1930s by Chaudhry Rahmat Ali and Muhammad Iqbal. And in 1930s में 1935 Act पास किया था, Government of India Act, especially after the Salt Satyagraha was suppressed. And Congress, by that time, Gandhian movement had become a nationalist movement, which was encompassing millions of people, 100 million, 200 million people, which was very, very dramatic for the British. Because they say it may be a peaceful movement, but if it gets really popular movement, then they will not have the force to suppress it. आप अरेस्ट करेंगे गांधी को, नेहरू को, गांधी के मदर को, गांधी के भतीजे को, गांधी के वाइफ को, उससे कुछ भी नहीं होगा। This is a popular movement, you have to address it. And what are they demanding? They are demanding participation, so let us introduce Government of India Act of 1935 और 1937 में इलेक्शंस हुए। गांधी बोल रहा था कि इलेक्शन लड़कर छोड़ो, आप पॉपुलर मोबिलाइज करो, लेकिन नेहरू बोला नहीं, इलेक्शन में लड़ेंगे, हम अपना स्ट्रेंथ देखेंगे पब्लिक में कितना। 37 में कांग्रेस क्विट्स, मुस्लिम लीग इज वाइप्ड आउट। कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्ट्रीज, मुस्लिम लीग इज अटैकिंग दिस मिनिस्ट्रीज, सेइंग दैट हिंदू राज आ गया है। टेक्स्ट बुक देखो, करिकुलम हिस्ट्री का, कांग्रेस का झंडा जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लहरा रहा है, ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग चल रहा है प्रेयर्स में सुबह मॉर्निंग में। तो ये पूरा हिंदू राज आ गया है। अगर ब्रिटिश जाएंगे तो हिंदुओं के कानून गुलाम हो जाएंगे करके ये मुद्दा जिन्ना ने उठाया। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में उन्होंने ये बात रखी। लाहौर रेजोल्यूशन इट्स समटाइम्स कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और 1933 से स्टार्ट हो गया था ये यूरोप में जो है ये वर्ल्ड वॉर जो है बादल मंडरा रहे थे। हिटलर बड़ा खतरनाक आदमी और मुसोलिनी
ये दोनों जो है पूरा फैसिज्म और नासिज्म लेके आए, सभी को राउंड अप करके अंदर डालो, मारो काटो खत्म ही कर दो, एनहाइलेशन, बस जेनोसाइड, ये पॉलिसी था। और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने जा रहा था। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिस्ट्री ऑल रिजाइन, बोले हमको बिना कंसल्ट किए जबरदस्ती इंडिया को ठूस दिया है वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे कैसे हुआ। तब जिन्ना बोला ठीक, दिस इज अ डे ऑफ डिलीवरेंस, वी आर गोइंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश। तो जिन्ना हु Muslim League, who has completely lost in 1937 elections, built up his popularity in Bengal and Punjab and other places like Sindh, northwest Sindh or other provinces with Muslim majority. While the Congress was in jail after the Quit India movement, entire leadership of Congress was taken out, and the Muslim League supported the British during the World War II, right? And Jinnah actually built up the base for Muslim League's Pakistan demand. Okay, so 1946 में जब elections हुए तो Jinnah's Muslim League swept Muslim majority provinces, and they demanded Pakistan, that we want to have Pakistan. So then you have the third stage coming up, which actually overlaps with the second stage from 1940s onwards, when Pakistan resolution was formed, even though the word Pakistan itself was created in the early 1930s or mid 1930s. So third stage actually then begins from 1940s and ends with 1947, leading to partition of India, partition of Bengal, partition of Punjab, massive violence, unbelievable. एक कितने 1 million लोग मरे, वो भी चाकुओं से और तलवारों से कटे, गोली बंदूक तो नहीं चला था। पता नहीं दुनिया भर के हजारों लाखों वुमन को वो कर दिया था, खराब कर दिया था, मार दिया था, बच्चों को डिस्प्लेस किया, वुमन को किडनैप करके ले गए। और फिर 10 million माइग्रेंट्स, हिंदू पाकिस्तान से आ रहे हैं इधर, मुसलमान यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान, पूरा प्रोजेक्ट इन लोगों का फेल हो गया कंप्लीट। गांधी गेव अप, दिस वेस्टर्न एजुकेटेड इंडिया, ये जितने भी है, ये जिन्ना, नेहरू, गांधी, ये सब जो है, पटेल वगैरह, इनका प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल। एक किस्म से, दूसरे किस्म से सक्सेस था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, पाकिस्तान बन गया। तो एक किस्म से सक्सेस ये हुआ, समझो नेहरू का बहुत बड़ा स्पीच है उधर, when in the midnight hour when world sleeps, India will rise to freedom, वो बड़ा जबरदस्त इमोशनल स्पीच है वो। तो प्रोजेक्ट तो हो गया, नेशन फॉर्म हुआ, और फिर कश्मीर का जो है मुद्दा, वही डिवाइड एंड रूल का, कश्मीर विक्टिम हो गया, आज तक चल रहा है, राइट। 1948 में जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद 4 जंग हुए इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के, और आज भी कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, वही पार्टीशन का डिवाइड एंड रूल का अभी चल रहा है। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो जैसे हुए नेहरू, गांधी, पटेल, अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, पी.सी. जोशी, कम्युनिस्ट लीडर्स, सोशलिस्ट लीडर्स, दांगे वगैरह, ये जितने भी थे, ये विजनरी थे, ये दूसरे किस्म के लीडर्स थे। इनका विजन था कि इंडिया should be a casteless society, India should be a society where there will be no discrimination, where women will have rights and respect and protected, where there will be no religious there will be religious freedom, there will be freedom to speech, freedom to mobilize, freedom to organize, freedom to protest peacefully, freedom safety of life, liberty, that was the vision of these leaders. And after 75 years, India is still struggling to actually achieve this vision, right? So that is where I land. Sorry I took a long time, and thank you very much, and thank you again for Shamrao ji, co-edition or organizers
for inviting me. धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी और ओजस्वी और गहन विचारों के लिए। इसके बाद मैं आज के जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर मेधा प्रशांत कानेटकर मैडम, प्राचार्य श्री निकेतन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज एंड अधिष्ठाता वाणिज्य और प्रबंधन संकाय, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ। मैडम का परिचय वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें कुछ संक्षिप्त में करने की कोशिश की है। मैडम एक अनुभवी शिक्षाविद और अकादमिक प्रशासक है, जिनके पास वाणिज्य और प्रबंधन निकाय में 35 वर्षों का अध्ययन का अनुभव है। इसी के साथ मैडम ने शोध और प्रकाशन में भी बहुत योगदान है। जैसे मैडम के अंडर 13 पीएचडी ने सफल पूर्वक मार्गदर्शन मैडम ने उनको किया है। मैडम के नाम पर 2 पेटेंट भी है और सबसे बड़ी उपलब्धि मैडम ने अभी तक 133 किताबें लिखी है, जिसमें कुछ पाठ्यक्रम के ऊपर है और बहुत सारी किताबें रेफरेंस बुक के आधार पर भी उन्होंने लिखी है। इसके अलावा मैडम ने विदेशों में भी जैसे जापान, मलेशिया, जर्मनी, इन देशों में भी बड़े पैमाने पर शोध प्रस्तुत किए। एकंदर उन्होंने 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा मैडम ने उपलब्धियां भी बहुत हासिल की है। जैसे 2017 में मैडम को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार का अवार्ड राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ से मिला हुआ है। उसके बाद साहित्य पुरस्कार में दलित साहित्य पुरस्कार से भी मैडम सम्मानित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शोध पत्र के लिए भी मैडम को 2013 में DMIMR से प्राप्त हुआ है। इसी विशेष ख्याति प्राप्त मैम को मैं आज यहाँ पे उद्बोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मेधा कानेटकर मैम। धन्यवाद सर, इतने अच्छे से मेरा परिचय करने के लिए। सब लोग सोए तो नहीं है ना? हमारे देश से हम लोग सब प्यार करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे भारत माता की। दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। जाग गए सब लोग? तो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे लक्ष्मण सत्या सर, उन्होंने हमें पूरा जो रिविजिटिंग हिस्ट्री कराई है। गाडगे सर, एग्जीक्यूटिव मेंबर ICSES न्यू दिल्ली, हमारे सबके चाहते, हम सब उनको चाहते हैं। श्यामराव कोरटी सर सबके दिलों में बसते हैं कि नहीं? तो सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मैं कॉमर्स मैनेजमेंट की हूँ, तो कौन सा प्रोस्पेक्ट लेना चाहिए, किस बात पर बोलना चाहिए, ये जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये एक जो सब्जेक्ट है वीमेन इन एंशेंट, मॉडिवेल एंड मॉडर्न लाइफ कैसी है, तीनों स्टेज में कैसे उसका डेवलपमेंट होते गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हाँ, तो इंट्रोडक्शन पॉजिटिव ऑफ वीमेंस हैज़ चेंज, पोजीशन ऑफ वीमेंस हैज़ चेंज ओवर टाइम। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी पोजीशन जो है वो चेंज होती गई एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक। देन इन्फ्लुएंस बाय सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो हम लोग देखेंगे। और स्टडी अक्रॉस एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स, ये इसके ऊपर मेरा खास ध्यान रहेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी पोजीशन कैसे थी, तो रिलेटिवली हाई स्टेटस था। अब इसमें यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा एक आपको स्टोरी बताना चाहूँगी कि सबको पता है आज कल जो रिलेशनशिप चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, सबको पता है ना। तो एंशिएंट टाइम में, हमारे ज़माने में, हमारे इंडियन जो वैदिक पीरियड, वैदिक में जो लिखा हुआ है, मैथोलॉजी में जो लिखा हुआ है, एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ
कि विश्वामित्र जब अघोरी से तपस्या कर रहे थे तो इंद्र का आसन हिलने लगा, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बहुत ज़्यादा तपस्या कर लेंगे तो मेरी जगह ले लेंगे। तो उन्होंने मेनका नाम के एक अप्सरा को भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए। और विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य पे मोहित हो गए और उन्होंने उसके साथ रहना शुरू कर दिया, लिव इन रिलेशन उनकी शुरू हो गई। उसमें से उनसे ये चला कि एक शकुंतला नाम की लड़की उसमें पैदा हो गई। अब मेनका को लगा कि मैं तो इसमें अटक जाऊंगी, यहाँ पे रहना पड़ेगा मुझे। तो उसने क्या किया, वो शकुंतला को कण्व मुनि थे उनके आश्रम के सामने रख दिया और वो खुद चली गई। तो देखिए तब भी रिलेशनशिप जो था, लिव इन रिलेशनशिप जो था वो अयोग्य था, क्योंकि उसमें क्या हुआ, पैदा हुई लड़की को किसी ने स्वीकारा नहीं, ना विश्वामित्र ने ना मेनका ने, वो छोड़ के चली गई। फिर उसके लाइफ में क्या हुआ, दुष्यंत नाम का राजा कण्व मुनि के ऋषि आश्रम में एक दिन आया, शकुंतला का रूप देखकर मोहित हो गया, उससे शादी करने के लिए बोला। तो कण्व मुनि ने उसकी शादी उससे करा दी। कुछ दिन वो साथ में रहे, बाद में दुष्यंत राजा जो था वो अपने राज्य में चला गया और वहाँ जाने के बाद वो भूल गया कि मैंने इससे किसी लड़की की शादी की थी। जब वो उसके बेटे को पैदा करने वाली थी तब जो कण्व मुनि थे उन्होंने उसको दुष्यंत राजा के पास भेजा, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। पूरी स्टोरी है, रियलिटी है। फिर शकुंतला ने जंगल में जाके उस अपने बच्चों को जन्म दिया और उसको बढ़ाया। वो जंगल में बढ़ा और उसका नाम भरत रखा गया। आज हमारा देश का नाम जो है उस लड़के के नाम से है, भारत देश, है ना। तो हाई स्टेटस था, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें पूरी आज़ादी थी और एक्सेस टू एजुकेशन था। सब लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे। पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस रिचुअल्स में भी जो औरतें थी वो पार्टिसिपेट करती थी। मैरिज चॉइस का फ्रीडम था। हमने बहुत सारी, अभी तो रामायण, कोरोना में तो कोई काम नहीं था तो रामायण महाभारत सबने फिर से देखी होगी। तो आप देख सकते थे कि सीता स्वयंवर हुआ था, कुंती का भी स्वयंवर हुआ था जिसने पंडु को वहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो लड़कियों को आज़ादी थी कि अपने वर को स्वयं चूजे, इसलिए उसको स्वयंवर ऐसे कहते थे कि मेरा वर मैं खुद चॉइस करूँगी। आज हम लोग वही कर रहे हैं ना, कि हम लोग जाके सिर्फ माँ बाप को बताते कि इससे मुझे शादी करनी है। तो ये स्वयंवर फिर से आ गया है, ठीक है। देन हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेजुअली डिक्लाइन इन स्टेटस, थोड़ा थोड़ा सा लेटर पीरियड में एक हमारा जो स्टेटस था औरतों का वो थोड़ा थोड़ा गिरने लगा था। थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज इमर्ज हो गया था। महाभारत का काल अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा पैट्रियटिक जो है सिचुएशन आने लगी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे द्रौपदी वस्त्रहरण का एक चित्र लगाया हुआ है कि उसमें जो पुरुष प्रधान सत्ता थी उसका इमर्जन होने लगा था, धीरे धीरे वहाँ पे होना लगा था। स्त्री एक भोग्य वस्तु ऐसे वहाँ पे देखा जा रहा था। तो धीरे धीरे एंशिएंट टाइम से ही धीरे धीरे औरतों की जो जगह है वो धीरे धीरे गिरने लगी थी। देन हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट टाइप में नोटेबल पीरियड कौन को हो गए थे। तो गार्गी एक फिलोसोफर थी, मैत्री थी जो एक स्कॉलर थी जो लोगों को पढ़ाती थी, लोपामुद्रा थी जो वैदिक थिंकर थी, बहुत सारे लोगों के साथ उसके यानी उसके खुद के भी बहुत वैदिक जो है ग्रंथ हमको उपलब्ध होते हैं। और कोई एक क्वींस भी थे, बहुत सारे लोग सादा जो थे वो रानी थी और राज्य कर रही थी अपने राज्य के ऊपर। मेडिवेल में क्या हुआ कि इंक्रीज सोशल रिस्ट्रिक्शंस, क्या हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ और पहली बार ये होता था कि कोई भी राज्य में जाकर अगर हम लोग युद्ध जीतते हैं, लड़ाई जीतते हैं, तो वहाँ पे जो औरतें हैं उस देश की, उस औरतों को सबसे पहले उठा लो या उनको वहाँ पे खराब कर दो या उनसे अपना वंश बढ़ाओ। तो होता था कि वहाँ जाके औरतों को हानि पहुँचती थी, इसलिए हम लोग देखते हैं कि औरतों को फिर अंदर रखने लगे। आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हमने हमारे औरतों को अंदर, घर के अंदर बंद कर दिया और हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए।
हमने उनको हमारी जो सोसाइटी है बाहर जाके पुरुष बाहर जाएंगे, स्त्रियाँ जो रहेंगी वो अंदर रहेंगी, ऐसे हमारी सोसाइटी शुरू हो गई और हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिटेड हो गया, कम होते होते गया। सोशल प्रैक्टिसेस क्या थी उसमें? पर्दा सिस्टम आ गई कि लड़कियों ने घूंघट में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, अपना मुंह किसी को दिखाने नहीं चाहिए। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि जैसे आक्रमणकारी है वो हमारी औरतों को अगर लेके जाएंगे तो हमारा वंश वहाँ पे खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने पर्दा सिस्टम लगा दिए थे। चाइल्ड मैरिजेस होने लगे क्योंकि लड़कियाँ अगर बड़ी हो जाएगी तो वो स्वयंवर करेंगी, हमारे वंश का नाश हो जाएगा, हमारा वंश बढ़ना चाहिए। इसलिए जो जाति में थी या हमारे प्रजाति में ही उसकी शादी होनी चाहिए, इसलिए चाइल्ड मैरिजेस होने लगे और हमारे जो राइट्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे आ गए। आप लोग देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे लगाया है कि अधेड़ उम्र के साथ भी अधेड़ उम्र के वाले आदमी के साथ भी छोटे बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। तो ये जो धीरे धीरे ये सब आक्रमणकारियों का परिणाम हमारे ही यानी स्त्रियों के ऊपर ही ज़्यादा आया है। तो ये एक सोचने वाली बात है। फिर भी उसी टाइम पे कुछ ऐसे औरतें थी, कुछ ऐसे लेडीज़ थी कि जिन्होंने अच्छा काम किया था। रजिया सुल्ताना का नाम में हम मालूम है, रानी दुर्गावती जो वॉरियर थी, मीराबाई उन्होंने भक्ति किया था, नूरजहाँ हम लोग सब जानते हैं उनको। तो ऐसे भी नोटेबल कुछ वुमेन मेडिवल पीरियड में हमें देखने को मिलती है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के सब हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल की वजह से हमें एजुकेशन मिल रहा था। एजुकेशन से एजुकेशन के लिए तो हमने सब ने बाबा साहेब आम्बेडकर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए और सावित्रीबाई फुले को हम आदर्श मानना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज़ पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है अभी। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हो गए थे। लड़कियाँ पढ़ने के लिए आगे आ रही थी और बहुत सारे कामों में आगे आ रही थी और कुछ वुमेन के लिए लीगल रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग अभी सिक्योर्ड फील करते हैं। और हाँ, फ्रीडम में भी फ्रीडम मूवमेंट हुए, उसमें भी बहुत सारे जैसे रानी लक्ष्मीबाई आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को लेकर वहाँ पे अपने किले के ऊपर से उन्होंने घोड़ा लेकर वो नीचे आई थी। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली, बहुत सारे नाम ले सकते हैं। मैंने 3-4 नाम आपको रिकॉल करने के लिए, रिविजिट करने के लिए यहाँ पे डाले हैं। तो ये भी सब हमारे नोटेबल फ्रीडम मूवमेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी आ गई है, राइट टू वोट। इसके लिए हमें लड़ना नहीं पड़ा। अगर विदेश का अगर हम लोग देखते हैं, अमेरिका से लेके यूरोप तक हम लोग देखेंगे कि सभी वीमेन को 8 मार्च किसके लिए हम लोग मनाते हैं वीमेन डे, क्योंकि उन्हें वोट ऑफ राइट्स जो तो वो था राइट ऑफ वोट वो वहाँ पे मिला था। उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ा, हमारा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों बढ़ा। बाबा साहेब आंबेडकर ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है की स्त्री असो वा पुरुष दोघांनाही समान शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अधिकार देण्यात आला पाहिजे। तो ये जो हमको मिला है, मांगने से नहीं मिला, हमको मिला है, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। ये हम इसलिए हम लोग पढ़ पा रहे हैं, हम लोग आगे जा पा रहे हैं। तो कंक्लूजन का होगा, स्टेट्स ऑफ वुमेन नॉट स्टैटिक। वो अभी स्टैटिक नहीं रहा, हम लोग बाहर निकल चुके हैं। बहुत सारे घरों में अभी भी है कि अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो मुगलों का आक्रमण का डर इतना ज़्यादा माइंड में बैठ गया था कि हम तो निकल गए बाहर, लेकिन हमारे औरतों को बाहर निकालना हम लोग भूल गए शायद। तो वो दरवाजे हमको ही खोलने पड़ेंगे, हमको ही वो बाहर निकलना पड़ेगा। प्रोग्रेस फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स जो है वो हम देख रहे हैं कि आज हमारे वीसी जो है वो एक औरत है और ये बहुत प्राउड फीलिंग है हमारे सबके लिए। सबके लिए 102 साल लगे एक औरत को नागपुर विद्यापीठ में वीसी बनने के लिए। तो इसी से हम लोग देख रहे हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर एक आदमी को वीसी बनना है तो उसका स्ट्रगल कम रहता है, एक औरत को अगर वीसी बनना है तो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अभी मैडम वीसी बन गए तो प्रोवीसी की चर्चा चल रही है हमारे यहाँ। प्रोवीसी के लिए बहुत सारे लेडीज़ के नाम भी आ रहे,
तो कुछ चर्चाएं ऐसी भी कान में आई कि एक औरत को दे दिया ना वीसी, अब प्रो वीसी क्यों चाहिए, ऐसी भी चर्चा ध्यान में आई। तो मैंने उनको बोला कि जब एक पुरुष जब वीसी बनता है तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं अब मेल को नहीं मिलेगा, अब औरत को देंगे, ऐसे बोलते नहीं। तो हमारे जो विचार है कि दिया ना हमको, दिया, देने वाले कौन है हो आप, देने वाले कौन हो, हमने लिया है ना। तो ये हमारे जो विचार है, हमारे समाज के अंदर जो विचार है, ये हमको बदलने हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो स्ट्रगल है अभी ख़त्म हुआ नहीं, ये तो जस्ट शुरुआत है। हमको तो 50% चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा डेमोक्रेसी हो, हमारा 50% जो है हम औरत है, हमारे लोक संख्या का भाग है। तो हम सभी जगह पे जाएंगे, 50% हमारा अधिकार है सब जगह पे जाने का, और इक्वल राइट्स चाहिए। मत सोचो कि ये औरत ये मेल है, ये सोचिए कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकती है। इसका ये सोच के ही अगर आप उसकी जगह देंगे तो ही जाकर भारत एक अच्छे महान सत्ता बन सकता है। इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। आप सब ने मुझे सुना और मेरे विचार अब तक पहुँचे, तालियों की वजह से मुझे पता चला कि आपको अच्छे लगे। तो यही बोलूँगी कि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां त्वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मैम। स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा कि मैम ने हमारे सिलेबस के 2 पेपर कुछ शब्दों कुछ मिनटों में ही पूरे कर दिए, वुमेन एंड एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया एंड पोस्ट मॉडर्न इंडिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। जिस लिए शोधार्थियों का अभी तक राह देख रहे हैं वो समय आ चुका है बेस्ट शोधार्थियों को सम्मानित करने का। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि बेस्ट शोधार्थियों को सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से नवाजा जाए और उनका स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देके उनका सम्मान करे। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ तृतीय पुरस्कार के लिए, जिन्हें बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार में मिला है, वो है गौरव तामगाड़गे। हाँ, द्वितीय पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है उनका नाम है पवन कुमार यादव। मैं मान्यवर को विनंती करता हूँ कि इन्हें स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देके सम्मान करें। पवन कुमार यादव। प्रथम पुरस्कार के जो हकदार है, जो जजों के मुख से भी जिनका नाम निकला है, ऐसे अनिकेत बेंडे, इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार में। मैं मान्यवरों से निवेदन करता हूँ कि वो अभी अनिकेत बेंडे को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देके सम्मान करें। सभी शोधार्थियों को हार्दिक बधाई। इसके बाद अब किसी भी आयोजन की सफलता वो उसकी प्रतिक्रिया से पता चलती है। तो मैं कुछ प्रतिभागियों को या आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए
और इस सम्मेलन के संदर्भ में 2 शब्द कहें। पहला नाम लेता हूं मैं मनीष बावकर। उपस्थित मान्यवरांचे आभार आणि अभिवादन। आजची ही परिषद अत्यंत उत्साहात पार पडली आणि याचा एक सुखद अनुभव आपण सर्वांनीच येथे घेतला। परिषदेच्या प्रत्येक सत्रातून काही ना काही बौद्धिक वृद्धी झाली असे आपण खात्रीशीर म्हणू शकतो। यामागे स्वतः कोरेटी सरांची आणि इतिहास विभागातील प्रत्येक सदस्याची मेहनत होती आणि ही मेहनत ठाई ठाई आपण अनुभवली। प्रत्येक सत्रात बौद्धिक भूक तर भागत होतीच, पण सत्रादरम्यानच्या जेवणाने रसनाही तृप्त झाली। अशा उत्तम परिषदेत सहभागी होता आलं आणि यासाठी मी डॉक्टर कोरेटी सरांचे आणि इतिहास विभागाचे पुन्हा पुन्हा आभार मानतो। इतिहासाची पाने उलगडताना त्यांना काळाशी जोडताना आज जमले ऐकण्या अनेकांना, काही ज्ञान मिळवण्या, काही ज्ञान देण्या। धन्यवाद सर। अशा परिषदांचे आयोजक पुन्हा पुन्हा होत राहावे अशा शुभेच्छा देऊन मी थांबतो। नक्कीच सर, तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही असेच वारंवार प्रोग्राम आयोजित करतो आहे डिपार्टमेंटला आणि येणाऱ्या काळातसुद्धा असे प्रोग्राम आम्ही आयोजित करू। त्यानंतर द्वितीय आहे मिनल जिंबेकर। मी त्यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी सुद्धा आपले फीडबॅक मंचावर येऊन साझा करावे। Respected dignitaries on the dais and off the dais, I am Minal Sanjay Jibbenkar here to present my sincere feedback for the organization of this international conference. This international conference, Shifting the Lanes, Revisiting Historical and Cultural Studies, was a well-planned and smoothly organized academic event. From the registration process to the scheduling of the session and discussions was managed in a systematic and comfortable manner, which made participation easy and stress-free. The efforts of the organizing committee, volunteers and the Department of History, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur, were clearly visible throughout the conference. Their coordination, time management and hospitality deserves a special appreciation. Overall, this conference was not only academically enriching but also a pleasant and a memorable experience. I sincerely congratulate to the Department of History for successfully organizing such a high quality international conference. Thank you. थँक यू मॅम। यानंतर मी ऋषिकुमार बिसेन यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी सुद्धा आपले विचार मंचावर येऊन साझा करावे। आप सभी को नमस्कार। इतिहास में जैसा अध्ययन करते हैं तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है और इस इतिहास शोधक के लिए बड़ी समस्या होती है, वो होती है निष्पक्षता और तटस्थता। तो जो इस विषय का समाधान, जैसा मैं पिछले 3 सालों 4 साल इतिहास में पढ़ रहा हूँ और आज का जो कार्यक्रम था उसका विषय था कि शिफ्टिंग द लेंस, रिविजिटिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडीज़, यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन का जो नज़रिया है उसको चेंज करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ कि सुबह से अभी शाम तक के जितना मैंने सुना, जितना मैंने अभी तक के इतिहास को समझा, तो वास्तव में सर मैं तो इसमें ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से अपना जो नज़रिया है वो मैं उसमें बदल रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए ये काफ़ी सफल है और उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सफल होगा कि हमको अब जो इतिहास शोधन है, इतिहास को कैसे उसको करें, उसको नज़रिए को बदलना पड़ेगा। जो पारंपरिक हमेशा से जो हम सोचते आए हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको सुनना। और आज हमने जैसे बहुत सारी जानकारी सुबह से शाम तक के मिली, हम सब इसका ध्यान में रखते हुए जो इतिहास की जो समस्याएं जो कही जाती है, तटस्थता और निष्पक्षता, तो निश्चित तौर पे उसको हम जीत सकते हैं और बहुत अच्छे शोधन का कार्य कर सकते हैं। मैं इतिहास विभाग और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप सभी की सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सत्र के लिए शुरू करने वाले मैं
अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर SP गाडगे सर, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चर स्टडी कार्यकारी सदस्य, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्था है, और सर बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग पदों पर कार्यरत है। मैं गाडगे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे लिए मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। कठिन है। Last minutes of any match are important. The same goes with the conference also. तसा तर 20 मिनटं वेळ दिलेला आहे, पण मी छळणार नाही तुम्हाला इतके 20 मिनटं. I will be just referring to some pointers. Dignitaries on the dais and participants. I wish to define the topics. The culture word is being misunderstood only because the moment we talk about culture, traditions and rituals are supposed to be the culture all the time. Yes, tradition and rituals are a part of a culture, but culture is a big circle. It is more related to the values of life. When you say the values of life, the value term is being defined in marketing particularly, which gives you beneficial physical benefits, emotional benefits at the cost. So when you said value, yes, the culture has to contribute physically and emotionally. Does it contribute? Yes. Okay, but what is a culture? It's the simplest definition. The way of life which is governed by the cosmic principles, certain rules and regulations which are time proven. Mark the word time proven. Means it was important, it is important, and it will be important in future also. The continuity of a culture, particularly Indian culture, antiquity, if suppose you think about, it goes to back 15,000 years. What is so? Yes. How? It's a very lengthy subject. We will talk somewhere in the future. But yes, the simplest example is the Rigved. In Rigved, you will find continuous mention of a river Saraswati. Saraswati river at present is not anywhere being observed. But the study of geological context has proved that the river Saraswati was flowing in India 7000 BCE. It was reduced over a period of time. What it means, you compare the river Saraswati, existence of river Saraswati with Rigved, the period goes back to 9,000 years. You can go again back to the history. But yes, when we say the culture has to be there, has been developed as a civilization developed, why it was necessary? The simple reason, we are all animals. Do you accept? All animal kingdom, humans are also social animals. And there are 4 natural instincts which govern our life. The 4 natural instincts are Bhay, Bhuk, Nidra and Maithun. Fear, hunger, sleep and sex. If suppose you can control these 4 instincts, you are a cultured person. They are all natural instincts. If you don't control it, it becomes a Vikruti. Vikruti, Prakriti and Sanskruti. Sanskruti's definition, Sanskarit Kruti. If it is Vikruti, effect will be bad. If it is controlled and for betterment of, definitely you are a cultured person. Now, is it culture only referred to the human being?
नो. व्यष्टी, समष्टी, सृष्टी आणि परमिष्टी चारही गोष्टींचा विचार भारतीय संस्कृतींनी केलेला आहे. व्यष्टी म्हणजे इंडिव्हिज्युअल, समष्टी म्हणजे समाज, सृष्टी म्हणजे आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो ते, आणि परमिष्टी म्हणजे पूर्ण युनिवर्स. दॅट वॉज अ बिग कॅनव्हास ऑफ इंडियन कल्चर. Unfortunately, we have heard of doctor from Hyderabad. Britishers used the विविधता, भारतीय विविधतेचं सगळे उदाहरण आहे ते त्यांनी डिव्हिजन करता खूप छान वापरलेलं आहे. त्याच्यामुळे एक स्टेटमेंट नेहमी आपण वापरतो, करतो आणि ऐकतो पण, की इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल कंट्री. इट इज नॉट सो. द कल्चर डझंट रिप्रेझेंट ओनली your costume, your eating habits, your you can say festivals, because all these things vary according to the geographical conditions. Kashmir person cannot wear lungi, Keralian person can't wear woolen clothes, Rajasthani person can't wear knee-length dresses, and Assam person cannot wear a big ghagra, because the geographical conditions are such. Apparently they may be different, but basically all these people are having the same base on which the continuity of this culture from last 15,000 years we are observing, and in spite of so many aggressions, so many invasions, we have maintained and we have sustained this culture. UNESCO has published a paper where they have listed 44 world cultures, important culture. Out of 44, barring one, rest of the cultures are vanished or reduced to minimum, except Indian culture. In spite of, because of the various political and social uplevels in India and Britishers' rule, because it's a colonial mindset, what we are observing continuously, we have been divided into. But for national integration, what is more important is that we are supposed to have understanding of one culture. We are one. In ICCS, we say Mitakue Oasis. We are all related. संस्कृतमध्ये एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, त्याच्यानंतर वसुदैव कुटुंब. So many things are there which are representing our own culture. When it comes to that particular representation, yes, what are the values? Because when I say the culture is more related to values, just I will, because I have a very limited time, the basic values which are important and we have to imbibe on our lifestyle are, first is त्याग, दान, निष्ठा, ahimsa, satya. These are the basic values. Next, respect for parents and elders, family orientation, sacrifice and adjustment, trust in institutional managers, and importance of education. You just compare yourself, your lifestyle with from any part of India, the same values are everywhere. You may be Keralian, you may be Kashmiri, you will be Punjabi, you will be Rajasthani, Assam, Gujarat. Same values are there. On the basis of same values, we have designed our lifestyle for over a period of time, and we are still continued that lifestyle, and we are connected to each other. I can go on elaborated the things, but I don't think so the time permits, and I don't want to tax you people. Change of a narration is important. We have to revisit the history which is being taught to we people, missing lot of links. We know Mughal history, we know British history, we don't know. Do you know Oham kingdom? Ruler 600 years. Chola. All these kingdoms were ruling India for 600, 400, 300 years. No mention in textbook. Even we don't know full detail of Shivaji Maharaj. We are very proud of that particular personality because Shivaji Maharaj
होते म्हणून आपण आहोत हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण शिवाजी महाराजांकरता आपण काय केलं? फक्त नावं दिले कुठे ते 2-4 ठिकाणी, 2-4 पुतळे उभे केले. आपल्या जीवनामध्ये त्यांचा कुठेही अंतर्भूत आपण केलं नाही किंवा त्यांचे कुठलेही गुण आपण घेतले नाही. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट येस the research scholars has to have the changing of lens means you have to change the lens to the wide angle lens. Make it a wide angle lens so you can very easily see the various angles of the same subject with the new references. The new references is archaeology, yes, oceanography, yes, astronomy, yes, and anthropology, yes. You have to touch right at the beginning. Yogi sir was talking with respect to the practical scholars rather than desk scholars. The practical scholar has to go to the field, has to study. You just visit various temples, you will know the marvel. Even he was referring to the Shivaji Maharaj Rajgarh, ज्याला म्हणतात राजधानी. The beautiful piece of architect, Indian architect, with the height and availability of a lot of resources. So we have all the ingredients which are necessary for developing this India into one unit. एक 8 दिवस तुम्ही न्यूज चॅनल जर नाही पाहिले तर तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही सुखी आहात. मॅक्झिमम डिव्हिजन इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ द न्यूज चॅनल, राईट. आणि खूप गोष्टी असतात. प्रत्येक वेळेस जातीयता हा विषय प्रामुख्याने मांडला जातो. गेल्या 30 वर्षामध्ये 20 वर्षामध्ये मी भारतात खूप ठिकाणी फिरतो. मला कोणीही हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर माझी जात विचारली नाही. मला प्रवास करताना मला माझी कोणी जात विचारली नाही. मी पण कोणाला विचारली नाही. पण स्टुडिओ गेल्यानंतर मग मी प्रत्येकाची जात शोधतो, प्रत्येकाचा धर्म शोधतो, प्रत्येकाचं रिलिजन शोधतो. This divisive power which has been used powerfully by Britishers, that is colonial masters. Unfortunately, black colonial masters which are ruling India are continuing with the same thing. But we Indians has to think about the same thing again in a positive and prospective manner. Yes, we are Indians. Our culture is same. विविधता में एकता हम हमेशा कहते हैं. That is more important. Thank you. धन्यवाद सर आपके वजस्वी और प्रेरणादायी शब्दों के लिए. मैं समझ सकता हूँ कि शोधार्थियों बहुत देर से खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा 5 मिनट और देर होंगी. कुछ बदलाव है. तो बदलाव इसलिए है कि हमारे विभाग के 2 छात्रों को रेयरली कॉन्वोकेशन में डिग्री अवार्ड हुए, PhD. तो यहाँ पे उनका भी सत्कार किया जाएगा. मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुनील मुंगाते को, और आदरणीय कोरेटी सर को मैं निवेदन करता हूँ कि वो उनका शाल, श्रीफल और बुक्का देकर स्वागत करें. ये हमारे विभाग के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है कि हमारे ही विभाग से रेयरली 2 PhD शोधार्थी ने कॉन्वोकेशन में डिग्री अवार्ड हुए. जो दोनों विद्यार्थी हैं वो आदरणीय कोरेटी सर के मार्गदर्शक में उन्होंने दोनों डिग्री पूरी की है. नेक्स्ट डॉक्टर नेहा आफरीन मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और मान्यवर से निवेदन करता हूँ कि वो उनका भी शाल, श्रीफल और बुके देकर स्वागत करें. इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने
आदरणीय कोरेटी सर के निर्देशन में बहुत ही मेहनत की है, ऐसे हमारे कलीग प्रोफेसर स्वप्निल पाटिल, इनका जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं इस इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस के, तो कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर का भी स्वागत बुके देके मैं आदरणीय कोरेटी सर से निवेदन करता हूँ कि उनका भी स्वागत करें। इनके बाद इस इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी के कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अलीशा शाह, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इस इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी में, अब उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आदरणीय कोरेटी सर से निवेदन करता हूँ कि उनका भी बुके और गोंडी पेंटिंग देके सम्मान करें। अब समय आ गया है अंतिम पड़ाव के लिए। मैं अंतिम पड़ाव के लिए आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रामभाऊ कोरेकर सर। माझ्या हातातला कागद पाहून घाबरू नका. तुमचा आता अंत पाहणार नाही. आत्ताच 3 लोकांनी फीडबॅक या ठिकाणी देऊन गेलेत. त्यातून असं जाणवतं की सकाळपासनं जे सत्र झालेले आहेत ते सर्व फ्रुटफुल झाले आहे. त्याविषयी फारसं काही बोलावं नाही. उद्घाटनी सत्रात आपल्याला विद्यापीठाच्या माननीय व्ही.सी. डॉक्टर क्षीरसागर मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झाल्या. आपला बहुमूल्य वेळ त्यांनी दिला, त्यांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्यांच्यासोबतच बीजभाषक यशवंत पाठकजी, रिसोर्स पर्सन स्वेतलाना सिदोरोवा, विशेष अतिथी प्रवीण योगीजी, विशेष अतिथी डॉक्टर रविशंकरजी, डॉक्टर समयजी बनसोड, डॉक्टर नंदकिशोर करडे या सर्वांनी उद्घाटनीय सत्र आपली उपस्थिती दाखवली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. त्यासोबतच परिषदेचे आयोजक डॉक्टर कोरेटी सर आणि समन्वयक स्वप्नील पाटील सर सुद्धा त्या सत्रात बसले होते, त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. पहिल्या टेक्निकल सत्राचे चेअरपर्सन केशवजी वाळके आणि सोबतच बसलेल्या डॉक्टर मिश्रा मॅडम यांचं सुद्धा आभार व्यक्त करतो. या समारोपीय सत्रासाठी व्यासपीठावर अध्यक्ष म्हणून लाभलेले गाडगेजी, माननीय मेधाताई यांचं मी आभार व्यक्त करतो. सोबतच कोरेटी सर, समन्वयक डॉक्टर पाटील, माझे सहपाठी गोरे सर या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. या परिषदेत सर्वात महत्त्वाचं वर्क झालं ते जर्नल तुम्हाला आज मिळालं. त्या जर्नलसाठी जवळपास 1 महिन्यापासून आमच्या सर्व टीमने माननीय विभाग प्रमुखांच्या नेतृत्वात अथक परिश्रम घेतलं. विशेषतः सांगायचं झाल्यास मागील 8 दिवसापासून तर जी टीम होती सोव्हेनियर जर्नल निर्मितीची, या टीमनं सकाळी 8 ते रात्री 9 या शेड्यूलमध्ये कॅम्पसमध्ये थांबून या जर्नलला अंतिम टप्प्याचं स्वरूप दिलं आणि आज तुमच्यासमोर ते तुमच्या कॉन्फरन्स किटमध्ये उपलब्ध आहे. याचा आम्हाला मनस्वी आनंद होत आहे. मगाशी केशवभाऊने बोलताना एक वाक्य बोललं की संशोधक विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी पेपर प्रेझेंट केले,
तर त्यांनी खूप काही सूचना सांगितल्या, सुधारणा सांगितल्या. आम्हीसुद्धा त्या हिशोबानंच वागलो. कदाचित थोड्याशा चुका झाल्या असतील. आम्ही बेस्ट 15 पेपरचं प्रेझेंटेशनसाठी काढले होते, परंतु बऱ्याच संशोधक विद्यार्थ्यांचा आम्हाला फोन्स आले की आम्हालासुद्धा पेपर प्रेझेंट करायचा आहे आणि आम्हालासुद्धा पेपर प्रेझेंटेशनचं सर्टिफिकेट हवं आहे. माननीय विभाग प्रमुखांचं आमचं उदार अंतकरण आहे. ते म्हणाले की सर्वांनाच बोलवा. त्याच्यामुळे थोडीशी गफलत झाली आणि केशवभाऊंनी सांगितलेल्या सुधारणांवर त्या योग्यच होत्या. त्याच्यावर नेक्स्ट कधीतरी सुधारणा होतील याची मी ग्वाही देतो. अगदी कमी वेळात अक्षरा हे धुळेचं जर्नल आहे. त्याचे संचालक आहे माळी सर. या माळी सरांनी आम्ही 10 ते 15 दिवसात ॲक्च्युली 15 दिवसात त्याला पेपर दिले आणि त्यांनी या सर्व पेपरवर काम करून आम्हाला एक आकर्षक जर्नल 2 फरवरीला पाठविलं. त्याच्याबद्दलही त्या अक्षरा जर्नल आणि त्यांचे संचालक माळी सरांचं शतशः आभार. बेस्ट पेपरने ज्यांना अवॉर्ड दिला गेला, 3 बेस्ट पेपर काढल्या गेले, त्या टीमचं, त्या परीक्षकांचं आणि मिळालेल्या सर्व संशोधकांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सोबतच ज्यांनी इथं येऊन फीडबॅक दिला, खूप योग्य फीडबॅक दिला, त्यांचेसुद्धा आभार व्यक्त करतो. आमच्यासोबतच सरांच्या आग्रहास्तव मानव्यशास्त्रातील सर्व विषयाच्या HODsनी आम्हाला मोलाचं सहकार्य केलं. याशिवाय त्यांच्या शिक्षकांनी प्रत्यक्षात आमच्या विभागात येऊन आम्हाला मोलाचं मार्गदर्शन केलं आणि अमोल असं सहकार्य केलं. त्यात 10-12 नावं मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. डॉक्टर रायन महाजन, डॉक्टर नितीन कायरकर, डॉक्टर भूपेंद्र घरत, डॉक्टर हरीश बावनगडे, डॉक्टर प्रमोद कानेकर, प्राध्यापक मराठे, प्राध्यापक शिवनकर, प्राध्यापक किशोर पाटील, प्राध्यापक रजत इरपाते, डॉक्टर समीर कबीर, डॉक्टर अमृता इंदुरकर, डॉक्टर समीर कुमरे या सर्व मानव्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापकांनी वेळोवेळी मोलाचं सहकार्य केलं. त्याबद्दल मी शतशः त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. बरीच मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे. आम्ही आजचा जो दिवसभराचा या इंटरनॅशनल परिषदेचा अत्यंत देखणा समारंभ या ठिकाणी आम्ही घेऊ शकलो, त्यामागे विद्यापीठाने दिलेली आर्थिक मदत आणि आपणा सर्वांच्या नोंदणी शुल्कातून मिळालेली रक्कम, त्यामुळेच आम्ही आणि विभाग प्रमुखांनी एवढी मोठी हिंमत केली आणि आम्ही एक यशस्वी कॉन्फरन्स या ठिकाणी घेऊ शकलो असं मी ठामपणे सांगू इच्छितो. हा हॉल ज्यांनी दिला ते फार्मसी विभागाचे विभाग प्रमुख माजी कुलगुरू डॉक्टर काकडे सरांचंही या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी अगदी कमी वेळात आम्हाला या हॉलमध्ये ही परिषद घेण्यास परवानगी दिली. त्याचसोबतच शाहू सरांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. मास कम्युनिकेशनच्या अत्यंत सुंदर हॉलमध्ये आम्हाला जेवण घेण्याची परवानगी दिली. तिथं भोजनसुद्धा बनवल्या गेलं आणि त्या सुंदर हॉलमध्ये आपण बसून जेवण करू शकलो. त्याबद्दल त्यांचंसुद्धा आभार. या परिषदेची मुख्यतः जाहिरात करण्यासाठी विद्यापीठाचा प्रकाशक विभाग आणि PRO टीम यांचंसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मागील 3-4 दिवसापासून पेपरमध्ये सतत बातम्या लावल्या आणि बऱ्याच जणांनी मला फीडबॅक आले की आम्ही पेपरमध्ये वाचूनसुद्धा या ठिकाणी कॉन्फरन्सला प्रेझेंट राहू शकलो. त्याबद्दल त्या PRO टीमचेही सुद्धा मनपूर्वक आभार. अत्यंत सुंदर दिवसभर फोटो काढणारे आमचे डोळस भाऊ यांचंसुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. मगाशी कोणतरी बोलून गेले की जेवणाची चव फार सुंदर होती.
त्यांचं जेवण बनवण्यावाले काय सर नाही माझं परसोडकर सर, ते नेहमीच कॅम्पसमध्ये विविध विभागात जेवण देत असतात. परसोडकर बंधू यांचंसुद्धा शतशः आभार. आमच्या माननीय विभाग प्रमुखांच्या मार्गदर्शनात ज्या टीमनं काम केलं ते डॉक्टर गोरे सर, डॉक्टर आनंद गणवीर, डॉक्टर मृणालिनी रांगणे, डॉक्टर स्वप्नील पाटील, प्राध्यापक अलिशा सहाय, डॉक्टर सचिन भोगेकर, डॉक्टर प्रदीप चव्हाण, डॉक्टर सुनील मुंगबाते, डॉक्टर नेहा अफरीन, प्राध्यापक हर्षद अडागे, प्राध्यापक विठ्ठल पारखी, प्राध्यापक जयंत उकरे, प्राध्यापक अशोक नेताम, प्राध्यापक भट्टाचार्य, आमच्या विभागाचे सतत तत्पर असणारे बाबूजी शैजाद शहा, आमचे कर्मचारी राजूभाऊ परतेकी, यासोबतच आमच्यासोबत काम करणारे संशोधक विद्यार्थी अमोल धोत्रे, पानतावणे मॅडम, सीमा धाडसे यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी अगदी 8 दिवसापासून तनमन धनाने या सर्वांनी काम केलं आणि त्यामुळेच आम्ही या एका दिवसात एवढा शेड्यूल फिट केला आणि यशस्वीपणे या कॉन्फरन्सला आम्ही घेऊन आलो, सामोर गेलो असं म्हणता येईल. अच्छा, सकाळच्या सत्रातलं एक नाव सुटलं होतं, माननीय सरांनी आता सांगितलं. बीजभाषक म्हणून यशवंत पाठकजी या ठिकाणी उपलब्ध झाले होते. आपण ऑनलाईन माध्यमातून सर्व जोडले होतात, त्यांचंसुद्धा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. साफसफाई कर्मचारी होते आमच्या विभागातले, त्यांनी हा स्टेज स्वच्छ करून दिला. पाटील, सफाईवाल्या ताई आणि बादल हे 3 माणसं प्रमुख होते त्यात, त्यांचंसुद्धा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे. मी कृपया राष्ट्रगानसाठी सगळ्यांना आपल्या स्थानावर उभं होण्यासाठी विनंती करतो. राष्ट्रगान सुरू किया जाए. भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद.